Good morning, students. Today we are starting our next part of the economics, that is statistics. Okay, and the book's name is Statistics for Economics. Okay, so what exactly statistics is? Generally, statistics means any data, okay, numerical data, which is collected by the investigator or the enumerator for analysis purpose, for analyzing something. Okay, so generally statistics, as we know that generally statistics means the data, numerical data, or you can say any information which is collected by a person for analyzing something in any field, either in science or social science. Okay, so here we are also discussing about this kind of statistics in economics, like in the form of information or data. Basically, the numerical data we will be discussing about in economics. Okay, though we are not denying that the data can be or may be qualitative or quantitative. Okay, both are important from different perspectives or different point of views. Okay, so first of all, if we talk about the term statistics, okay, that is derived from the term status. Okay, that is related with the political science. Okay, uh, Gottfried Achenwall is known as the father of statistics. Okay, or you can say this is the person who very first used the term statistics. So this person is known as the father of statistics. Okay, just as we know Adam Smith is the father of economics. So Gottfried Achenwall is known as the father of statistics. Okay. Now coming to the point, the definition of statistics. So statistics can be defined in two senses or in two broad categories. We divide it into two categories while defining. Okay. So first category is statistics can be defined in singular sense and can also be defined in plural sense. Okay. Now, what does these statements tell about statistics? So the singular sense, the statistics in singular sense can be defined as statistical methods. Okay, that means we are saying that uh, statistics means the data or the information. Obviously, that data or that information has to be collected or is collected by someone. Okay, so while collecting, that person obviously has used or will be using or will use some methods or will follow some rules or regulations. Okay, so what are the methods through which the data is being collected? Okay, we will be discussing about those methods in singular sense. Okay, that how the data or the information is collected. जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है किसी पर्टिकुलर रिजल्ट निकालने के लिए और एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है, तो उस डेटा को कलेक्ट किस मेथड से किया गया है, ठीक है, तो वो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में. दैट मीन्स अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. ओके, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया गया है, कौन से मेथड्स हम यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज statistics in plural sense. Okay, plural sense में statistics बेसिकली स्टेटिस्टिकल डेटा. ओके, जो जो कि हम जनरली या बेसिकली बात कर रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब जनरली हम डेटा से ही लेके चलते हैं. ओके, एंड द डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. ओके, डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव वी आर सेइंग दैट द 10 स्टूडेंट्स of a certain class has scored 10, 20, 25, 13, 18, 17 marks respectively in a particular subject, or you can say the GDP of India has reached a negative slope and it has touched, we have experienced or observed a minus 23.5% growth. Okay, so that is the quantitative data. Okay, unemployment rate has reached sky high to 27% due to lockdown. Okay, so these are the quantitative information which we have collected or which we have gone through. Okay, that is the quantitative data. Okay, next one is qualitative data. Qualitative data means the information which is not in numbers. Okay, which is in words, or you can say on the ranks
which are high or low, or which are considered as high or low, that are known as qualitative information or qualitative data. That means which does not, the information or the data which does not include any number or figures, okay, that is qualitative, okay. That is the most intelligent student of the class, okay. You are fair enough to participate in a beauty contest, okay. So fair enough and most intelligent, okay, that is the qualitative information, okay. Both the information or both the data are equally important for making or for drawing some conclusions or making some results, okay. दोनों ही तरह के डेटा, हम ये नहीं कह सकते कि only the numerical data is of important or quite important for drawing results or making certain conclusions, okay. Both the data is equally important, चाहे वो एक qualitative information हो quantitative information हो, दोनों ही equally important है. बट द प्रॉब्लम इज कि वाइल, जैसे कि बेसिकली हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, दैट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव और द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ओके. दैट मीन्स वाइल talking about the statistics either in the fields of science or like social science, okay, or humanities you can say. We will be discussing about the numbers or figures in statistics. जब भी बात statistics की आती है, तो चाहे हम साइंस में यूज़ करें चाहे सोशल साइंस में यूज़ करें, बात हमेशा क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल फिगर्स की होती है, ओके. हम जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है. हालांकि इसकी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की कि वी आर नॉट डिस्कसिंग और वी आर नॉट पेइंग मच अटेंशन टुवर्ड्स the qualitative information which is equally important or which can be equally important along with the quantitative information, okay. So on this basis we will be discussing the separate definitions of statistics in singular as well as plural sense, okay. First of all we are taking the statistics as plural sense or in plural sense as statistical data, okay. Now हम discuss करेंगे statistical data को, उसके base पे स्टैटिस्टिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके. सो मूविंग टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, इन प्लूरल सेंस, ओके. these are the features of statistics in plural sense. जब हम statistics को plural sense में define करते हैं तो उसके according जो features हैं statistics के, okay, these are like this, okay. So first of all, the first point says the aggregate of facts. What does it mean? The aggregate of facts means a single data or a single fact we have collected about anything, okay. कोई भी fact या कोई single information या कोई single data हमने जो collect किया है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. जब तक हम ग्रुप डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं या ग्रुप में डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वो डेटा हमारे किसी या वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है. बिकॉज until or unless we do not compare the data or the information like interrelated or like with other data, जब तक हम कंपेयर नहीं करें या नहीं कर सकते हैं तब तक कोई रिजल्ट या मीनिंगफुल रिजल्ट हम नहीं ड्रॉ आउट कर सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते हैं, ओके. So the data, the single data or the single information, for example if I'm saying that this particular student like A or B whatever जो भी नाम दिया, okay, like Shan has got or Shan scored 30 marks in economics, okay. That is called the single data or the single information, clear. But that information or that data is not useful for drawing out a result or that doesn't provide any meaningful result, okay. बिकॉज हमें नहीं पता कि उसके मार्क्स अभी अच्छे हैं या नहीं है until or unless we do have the other data or the other information. फॉर एग्जाम्पल या तो मुझे ये पता चले किसी दूसरे बच्चे के मार्क्स, ठीक है, जिससे कि मैं कंपेयर करके बता सकूँ कि शान का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, या फिर मुझे मैक्सिमम मार्क्स उस सब लाइक उस पेपर के जो भी है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मुझे पता चले. लाइक 30 मार्क्स का ही पेपर था एंड शान स्कोर 30 out of 30. That means his performance is brilliant, okay, outstanding, clear. Only then we are able to compare if we have the other data along with the one we have collected, okay. So एक single data जो है, एक single जो information है, piece of information है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई meaningful result हम जब तक ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए beneficial नहीं है, okay.
So always the aggregate of facts, that means कुछ collective या group data हम collect करते हैं, ठीक है, so that we can compare and draw out some meaningful results, okay, and can make some results, okay. So जब तक हम group data collect नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर जब तक हम collectively information नहीं कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्टिवली मीन्स सम टोटल ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक कुछ यूनिट्स, okay, not a single unit or a single piece of information, we need some units of data, okay, or we need to collect the data in a grouped manner, okay. So जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल स्टूडेंट के मार्क्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं जब तक कि हमारे पास किसी दूसरे बच्चे के मार्क्स हो कंपेयर करने के लिए, ठीक है, या फिर लाइक मैक्सिमम मार्क्स हो, ठीक है, ओनली देन वी कैन ड्रॉ आउट द रिजल्ट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय वेरियस कॉजेज, ओके। इन सम बुक्स और many times it can be written as affected by multiplicity of causes, okay. Like affected by various causes या affected by multiplicity of causes means the data, okay, जो भी data हम कलेक्ट किए हैं, ठीक है, द डेटा whatever the data or the piece of information we have collected, okay, can be affected by various causes or the result we have drawn, या तो डेटा या फिर जो रिजल्ट हमने कलेक्टेड डेटा से ड्रॉ आउट किया है, ठीक है, दैट कैन बी अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, ओके। उसके एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं उस रिजल्ट के जो हमने ड्रॉ आउट किया है, या वो डेटा अफेक्टेड हो सकता है एक से ज़्यादा फैक्टर्स से, ओके। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है, तो पॉवर्टी एक रिजल्ट है, ठीक है, पॉवर्टी का डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, कि पॉवर्टी इज लाइक वेरी हाई इन आवर कंट्री। सो उसके पीछे रीजन या कॉजेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल इलिटरेसी कैन आल्सो बी ए कॉज, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी द अदर कॉज, ओके। सॉरी, the defective economic policies or the administrative system can be the other cause, okay। ऐसे बहुत सारे causes हो सकते हैं। तो जो भी डेटा हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट करते हैं तो उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं या जो लाइक कंडीशंस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा हमने कलेक्ट किया है या कोई भी रिजल्ट जो हमने ड्रॉ आउट किया है विद द हेल्प ऑफ द कलेक्टेड डेटा, दैट रिजल्ट ईदर or the data which is collected, okay, can be affected by various causes or multiple factors at a point of time, okay। मतलब किसी भी रिजल्ट के पीछे, ओके, कॉन्सिक्वेंस की बात हम करें, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज और नंबर ऑफ कॉजेज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही लाइक कॉज या एक ही फैक्टर के पीछे या उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है, ओके। वेरियस कॉजेज कैन बी देयर, ओके। लाइक कुछ भी हम ले सकते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स की अगर हम बात करें, परसेंटेज की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो परफॉर्मेंस सिर्फ एक टेस्ट में या एक सब्जेक्ट में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ठीक है, तो उसके पीछे मे बी वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, लाइक स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ओके, द पेपर पैटर्न, ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, क्लियर, मार्किंग या checking या marking scheme, okay। So various causes can be there behind that performance which is very low or which remained low, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे causes हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई लाइक स्टूडेंट जो है डल है, ठीक है, या फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ओके। वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, मे बी स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना रहा हो, ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हो सकती है, ठीक है, या फिर वो बीमार हो गया था उस पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे, या फिर लाइक स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर और द क्वेश्चन वाज वेरी टफ, ओके, वर वेरी टफ, क्लियर। इन दैट केस ऑल्सो द स्टूडेंट कुडंट परफॉर्म वेरी वेल, ओके। सो एक से ज़्यादा कॉजेज हो सकते हैं। बेसिकली हम कह रहे हैं कि कोई भी डेटा में जो कलेक्ट किया है, ठीक है, द कलेक्टेड डेटा or the results which are drawn or which is drawn by the with the help of collected data, clear। या तो डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर उस डेटा से जो कलेक्टेड डेटा है उस डेटा से जो रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ आउट किए हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर सकते हैं, ओके। दोनों ही केसेस में मींस वो
वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक अकेले फैक्टर के ऊपर कोई रिजल्ट या कोई कॉन्सिक्वेंस डिपेंड नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, जो भी रिजल्ट आया या जो भी कॉन्सिक्वेंस आया उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ओके, वी आर सेइंग दैट। सो स्टेटिस्टिक्स में जो भी डेटा की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में ले लें, पॉवर्टी का डेटा हमने लिया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमने लिया, ठीक है। ये सारे जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो इनके पीछे कॉजेज हैं बहुत सारे कि पॉवर्टी हाई क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई क्यों है, लिटरेसी रेट लो क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लाइक पीपल आर नॉट अवेयर, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशनल फैसिलिटीज। ओके, clear, number of causes can be there. So child labor can also be a cause behind the illiteracy or low level of literacy. Okay, high literacy है या illiteracy है या फिर low literacy है, तो उसके पीछे ये causes हो सकते हैं। Okay, तो multiple causes हैं, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ओके, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दैट वट एवर द डेटा वी आर कलेक्टिंग और वी हैव कलेक्टेड, so whenever we talk about the term statistics, either in science or social science, okay, we will be talking about the quantitative data or the numerical data. That means in statistics we are taking only the numerical data. Okay, we are foregoing the qualitative information here. Okay, तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारा मतलब किससे होता है, न्यूमेरिकल डेटा से होता है, ठीक है। नंबर्स की फॉर्म में जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उससे हमारा मतलब है, ठीक है। So the qualitative information is foregone or sacrificed or is not taken into account in statistics. Okay, बेशक से वो कितनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही हो, ठीक है, लेकिन हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो साइंस की बात की जा रही है, चाहे वो सोशल साइंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को या न्यूमेरिकल फिगर्स को या न्यूमेरिकल डेटा को ही हम कंसिडर करते हैं। ओके, बेसिकली जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स नंबर्स। ओके, द डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। ओके, सो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किससे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मिलके हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फीचर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा लिमिटेशन बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, दैट statistics only takes into account or considers the numerical data. Okay, it does not take into account the qualitative information. Okay, तो इसका लिमिटेशन बन जाएगा। जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो यहीं से हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस जो है ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन का पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करके चलता है। ओके, so next is enumerated or estimated. Okay, means two terms we are using here. One is enumerated and the other one is estimated. Okay, means it is talking about the data collection. Okay, the data can be enumerated or can be estimated. That means the data can be collected by actually counting. ओके, एन्यूमरेटेड का मतलब है जब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं या एक्चुअली काउंट करते हैं, दैट इज एन्यूमरेशन। ओके, सो द डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय एक्चुअली कैलकुलेटिंग और काउंटिंग द नंबर्स और द फिगर्स। ओके, जिसके बारे में भी डेटा या जिससे भी रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को अगर हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं या काउंट कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड collection of data through enumeration. Okay, or that data will be called enumerated data. Okay, तो जो डेटा हम एक्चुअली फील्ड में जाके एक्चुअली काउंट या कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो एन्यूमरेटेड डेटा होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड। ओके, एस्टिमेटेड के बारे में हमें पता ही है कि एक्चुअली हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल एस्टिमेशन डेटा का नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज जस्ट ऑन एवरेज बेसिस और दैट इज जस्ट मेयर एस्टिमेशन। ओके, वो सिर्फ डेटा का एस्टिमेशन है। ओके, अप्रोक्सीमेट है, राउंड अबाउट, सॉरी राउंड हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, डेटा को, क्लियर, बट एक्चुअली काउंट या एक्चुअली हमने कैलकुलेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं उनको देख के या किसी भी प्लेस पे एक ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ पर्सन है तो उनको देख के कहते हैं कि अराउंड 500 नंबर ऑफ पर्सन आर गैदर्ड हेयर। ओके, सो वी हैव यूज्ड अराउंड वर्ड। ओके, सो अराउंड 500 people have gathered here. Okay,
We have not counted actually the number of persons who were present or who are present over there. Okay, तो जो भी पर्सन थे, जितने भी लोग थे, हमने उनको एक्चुअली काउंट नहीं किया है, हमने जस्ट कहा अराउंड 500 नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट ओवर देयर। क्लियर? उस ऑडिटोरियम में 500 के आसपास लगभग, या 500 के आसपास लोग मौजूद थे। क्लियर? सो दैट इज जस्ट एन एवरेज और जस्ट एन एस्टिमेशन, कि हमने उनको सिर्फ एस्टिमेट किया है, एक्चुअली काउंट नहीं किया है। क्लियर? दैट इज मीन्स जब ऐसा कब होता है कि हम एस्टिमेशन कब यूज करते हैं, व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, हम आगे पढ़ेंगे, जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम दो टर्म सैंपल एंड सेंसस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? सो जो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डेटा और द नंबर ऑफ पीपल, वो डेटा हम उन पीपल से जब ले रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके, और द नंबर ऑफ पीपल कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएटली यूनिट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लोगों से ही डेटा या लोगों का ही डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ों का भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे होंगे। सो if the number of units are very large in the population or the census, ठीक है, population means वो area, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, the whole or the sum total of units, okay, जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है उनको हम population कहेंगे। ठीक है, so if the number of units in the population is very large, in that case we will estimate the data. Okay, or you can say simply, if it is not possible to actually calculate or count the number of units of the data, जब डेटा को या नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्चुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस वी एस्टिमेट द डेटा। ओके, इन दैट केस वी एस्टिमेट द डेटा। एंड व्हेन द size of the population, okay, or the number of units in the population is very small, okay, in that case we will go for actual counting or actual calculation of the data। okay, तो जब पॉपुलेशन में जब पॉपुलेशन साइज कम होता है या नंबर ऑफ यूनिट्स कम होती है, इन दैट केस हम डेटा को एन्यूमरेट करते हैं, एक्चुअली कलेक्ट करते हैं। ओके, when the population size is very large or it is not possible, means ऐसा भी कह सकते हैं population size large है, या फिर it is not possible to actually calculate or count the number of units, in that case we will go for an estimation। क्लियर? उस केस में एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, हमारे पास टाइम पीरियड कम है, तो भी हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ओके, एक और केस आता है कि व्हेन वी डू नॉट नीड और रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब हम एक्चुअल या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए, उस केस में भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट के लिए जाते हैं, डेटा को एस्टिमेट कर लेते हैं, एक्चुअली काउंट या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो डिफरेंट केसेस में हम डिफरेंट पॉइंट्स यूज करेंगे, या तो डेटा एन्यूमरेट किया जा सकता है या फिर एस्टिमेट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे हमने कहा, पॉपुलेशन साइज को देख के या रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेसी को देख के। ओके, next one is reasonable degree of accuracy। okay, we are talking about the features of statistics। okay, that means the data which we are using in statistics or which we have collected, okay, by using the methods of statistics, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उस डेटा में एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है या होनी चाहिए, यू कैन से। ओके, सो द डेटा वी विल बी सेइंग और वी आर सेइंग होनी चाहिए। ओके, बिकॉज it should be kept into mind by the enumerator or the investigator that the data which we are collecting, okay, we will be using for drawing some results or conclusions। okay, on the basis of such or those results and conclusions, certain policies or rules will be formed। okay, उन like results और conclusions के बेस पे policies बनाई जा रही होंगी। ठीक है, so वो policies जो है मीनिंगफुल रिजल्ट लेके आए, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम डेटा जो है, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट डेटा शुड बी accurate। okay, or the data should have or should possess the actual degree or the relevant degree of accuracy, so that we can easily conclude or can draw out the results to form or formulate the policies which can further provide the meaningful results or the fruitful results। okay, so it says that while collecting the data, the enumerator, the investigator should keep in mind
that the data which they are collecting should have the relevant degree of accuracy. Otherwise, it is not. There is no need to collect the data or such data which do not have the relevant degree of accuracy. Okay, that will all go in waste or in vain. Okay, they will be obviously uh, wasting their time and efforts if such data do not have the relevant degree of accuracy. So whenever we talk about the statistics, we assume that the data do have a certain or a relevant degree of accuracy. Okay, जब भी statistics की बात आती है तो जो data है, okay, that is reliable. Okay, हम मान के चलते हैं कि वो reliable data है because उसमें एक certain या relevant degree of accuracy है, ठीक है, exist करती है या वो data possess करता है relevant degree of accuracy. Okay, सो हम मान के चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा हमने कलेक्ट किया है न्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर ने, ठीक है, उस डेटा में सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी डू rely upon that data. Okay, next one is systematic manner. It says the data which the investigator or the enumerator is collecting, that should be collected in a systematic manner. That means the data should not be collected in haphazard manner. Okay, if the data is not collected by using some certain systems or methods, okay, or if it is collected in haphazard manner, okay, the data will be of no use. So a systematic method should be used. For example, if we are estimating, okay, so certain uh, methods we do have. For example, the central tendency, okay, averaging the numbers by using mean, median and mode. Okay, these are the methods which are used for averaging the numbers of the data. Okay, so certain methods are there. Whatever is the need, we should use, or we have to use the methods while collecting the data. The next one is saying the predetermined purpose. Okay, the data whatever we have collected or we are going to collect, okay, that is always collected for a predetermined purpose. Okay, means we do have a purpose or an objective for collecting the data. Clear? एक certain objective होता है हमारा उस data को collect करने के पीछे. Without that objective, the relevant data cannot be collected. जब तक हमें नहीं पता कि हम किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, we would not be able to find out the certain phase or the place or the area or the category from which the data has to be collected. Okay, जब तक प्रीडिटरमाइंड पर्पस को हम डिराइव नहीं करते हैं, जब तक हमें पर्पस या ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता, तो हम उन फेज को, उन कैटेगरीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट करना है. ओके, एंड इफ द कैटेगरीज और द फेजेस और द एरियाज आर नॉट known, obviously the data which is being collected or which is collected can be vague. Okay, वो data vague हो सकता है, उसका कोई use नहीं होगा. Okay, next one is comparability. Okay, sometimes it can be written as placed in relation to each other. That means सबसे पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दैट मीन्स a single piece of information or the single data is of no use. We collect the data in grouped manner. Okay, and whenever the number of units are being collected in the data, okay, and these units or these pieces of information are placed in relation to each other to find out the meaningful results, that means we are comparing the data. Okay, for example, marks of students in a class, if collected, so why we do collect the marks of all the students? To find out the results. That means so that we can categorize the students in like brilliant students, average students, poor students, or like good students. Okay, so that we are comparing the data, we are comparing their marks to find out their level of performance, so that we can categorize them into different parts. Okay, and making some policies or rules, or with the help of such data we also do work on the field. Okay, जो भी required steps हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाएंगी उस डेटा के बेस पे ही या उन रिजल्ट्स के बेस पे ही जो हमने उस डेटा से प्रिपेयर किए हैं, जो रिजल्ट्स हमने उन डेटा से प्रिपेयर किए हैं. ओके, सो हम मान के चल सकते हैं कि जो भी डेटा, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कलेक्ट करने के पीछे या
ग्रुप्ड मैनर में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन। ओके, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपैरिजन या कंपैरेबिलिटी। ठीक है, जब तक कंपैरिजन नहीं होगा डेटा का, हम मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं बना पाएंगे और वी वुड नॉट बी एबल टू रीच एट अ कंक्लूजन। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई कंपैरेबिलिटी और कंपैरिजन इज very important or an inseparable point in statistics. Okay, इसीलिए हम ग्रुप मैनर में या फिर कलेक्टिव डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। सो कंपेरेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। क्लियर, कंपेयर करते क्यों हैं, कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि हम रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। अदरवाइज विदाउट कंपैरिजन हम ये नहीं कह सकते। लाइक हमने डिफरेंट कंट्रीज को भी, उनकी इकोनॉमीज को भी कंपेयर करके ही तो कैटेगराइज किया है कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो कंपैरिजन करके ही हमने उनको फाइंड आउट किया है और या फिर उनको कैटेगराइज किया है डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, रैंक दी जाती हैं, रैंक्स भी हम किस बेस पे देते हैं, कंपैरिजन के बेस पे। ओके, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, उसके बाद रैंक देना शुरू करेंगे। ठीक है, मीन सबको कंपेयर करते हैं, हाईएस्ट स्कोरर को हम फर्स्ट रैंक दे रहे हैं। ओके, दैट मीन्स वो हाईएस्ट स्कोरर है, दैट मीन्स दूसरों के मुकाबले हाईएस्ट है ना, दैट इज ऑल्सो द कंपैरिजन। ओके, सो कंपैरिजन के बिना पॉसिबल नहीं है रिजल्ट ड्रॉ आउट करना, एंड कंपैरिजन के बिना स्टैटिस्टिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। डेटा कलेक्ट करके रख लिया लेकिन कंपेयर नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं ड्रॉ आउट कर पाओगे। ठीक है, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर।